the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने इसके बारे में बयान दिया है और सोच रहे हैं, क्योंकि सब गलत बयान दिया है। जो अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कहा, ये लोग कैसे देश को बेच रहे थे, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन किया, मुझे वो रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले भी ऐसे बहुत समझौता इन लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी देश के हित में कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं, ये तो सारे देश जानते हैं। इसीलिए गत 25 साल से 25 years either in the state or in the center, he is in the helm of affairs. Even still under his leadership, people are supporting us. तो फिर भी ये ऐसे कोई बिना तथ्य के आधार पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे आरोप लगाए हैं। इसलिए पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री इसमें निर्णय लेंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आज भी उनका व्यवहार जो है, उन्होंने जो भी बोलना है बोला बाद में, और विषय जो उठाया है, वॉट एवर द इश्यूज आर रेज्ड, उसके बारे में जब वित्त मंत्री, ऐसे तो उनका गला भी इतना ठीक नहीं था शायद, हमको जब सुन रहे थे हमको ये लग रहा था, उनको बोलने नहीं देंगे, ये क्या तरीका है? मीन्स कितना अनडेमोक्रेटिक है ये लोग, इससे पता चलता है। सर, तो निर्मला जी ने जो आज जवाब दिया, विपक्ष सेटिस्फाइड नहीं है, बाहर आकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। नहीं, उनको कुछ लोग उनके विपक्ष के साथ नहीं है, उसके लिए डिससेटिस्फैक्शन है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग वो तो सेटिस्फाई नहीं है, वो नहीं है हमारा, मतलब लोग सेटिस्फाइड है, इसीलिए लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। तो लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? विपक्ष कह रहा है किसान विरोधी है ये बजट है। ये किसान विरोधी क्या किया था? अभी निर्मला जी ने बताया ना, हमने तो अभी भी, अगर मोदी जी न आते होते तो मैं फूड डिपार्टमेंट के फूड के मंत्री के नाते कह रहा हूं, जो हम ही प्रोक्योर करते हैं, हम धान वीट जो भी प्रोक्योर करते हैं, आज के दिन में प्रोक्योर करना ही मुश्किल था। ऐसे स्थिति में ऐसे खगार में लाए थे, यही लोग आज हमको बोल रहे हैं आप बेच रहे हैं, और मोदी जी को वो भी, और मोदी जी को देश जानते हैं। और इसमें पीयूष जी ने बहुत डिटेल में स्टेटमेंट दिया है, हाउ फार्मर्स इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड, इसमें डिटेल में स्टेटमेंट दिया है। और बाकी सब क्लैरिफिकेशन भी आ रहा है, इतना वो तो जो भी अच्छा हो रहा है देश के लिए उसको भी टॉलरेट करना है, इतना इनटॉलरेंस उनमें बढ़ गए। धन्यवाद। Now let us talk. Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. Now what has happened? You've done a trade deal. It's small. It's written small in the back. Now let me tell you what is written about data. Our most valuable asset. The thing that is going to transform India in the 21st century. The thing that is going to make us a superpower in the 21st century. This is what the Modi government has done with our data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization.
Number 3, free data flow to the United States. Number 4, limit on digital tax. Number 5, no need to disclose any source code. The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it, to the big tax companies. This is what you've done on data. Second, no, I'll come to that, brother. Second, what have you done on tariffs? At the beginning, %3 was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. AI और डेटा के ऊपर बहुत चिंता व्यक्त की कि भारत के डेटा विदेश में चली जा रहे हैं। सही नहीं है, क्योंकि हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को, जिससे भारत देश में डेटा रहे और भारत के युवा को जॉब्स मिले। उसके लिए हम कर रहे हैं डेटा सेंटर के लिए प्रावधान, और उसको बिना समझे ये बोल रहे डेटा आप विदेश का कंपनी को दे रही हो। हमारे यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इसीलिए कि डेटा सेंटर भारत में रहे, डेटा भारत में रहे और डेटा हमारे युवाओं को मैनेज करने के लिए हमारे हाथ में रहे। ये एक विषय है। The point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, I do not, sir, this budget that you have. So you and your member have not raised any question. I believe that day when Piyush Goyal had made a statement on the floor of the House. सर मुझे अब कंक्लूड तो करने दीजिए सर। चलिए, नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर। ओके, थैंक यू। आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर। नहीं, काइंडली कंक्लूड। So, we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic in here, sir. राहुल गांधी जी नासमझ हैं, ये तो हमने पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में। लेकिन इतने बेसमझ हैं कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है।
मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी या वाणिज्य मंत्री के नाते मैं किसानों की सुरक्षा को पूर्णतः ध्यान में रखकर ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बातचीत हुई, फैसले हुए और ये भारत के सभी किसानों को मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके हित सुरक्षित है, उनका जो उत्पाद है वो सुरक्षित है और कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। भारत का किसान भी सुरक्षित है और भारत भी विकसित भारत के पाथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। भैया, here is a professional. I'm not even part of the government. In the month of November 2014, I was a private citizen. Somebody says they want to look at India. We have a meeting with Reid Hoffman, who is the founder of LinkedIn, on the west coast of the United States. And I start my email by saying, I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity and that Reid Hoffman should visit India to see the changes which are coming. Or another thing I want to tell you, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन द मंथ ऑफ नवंबर 2014. If memory serves me right, these projects started in 2015. So here I was a far-sighted private citizen who knows what kind of work the Modi government is going to do and the kind of transformation is here. So if this is what it is, this is what they call Hardip Puri's name appears in the Epstein file. Yeah, name. 2 pages. एक और बताऊं. This is even more interesting. They saw after a while that I had no interest in their kind of activities. So एक email है from Terry Rod Larson. By the way, Terry Rod Larson का मैं आपको बता दूं, he was not only the president of the IPI, but he was also the same person who had actually initiated the work on the Oslo Accords, जो Middle East में हुआ था. Let me also tell you, I'll read out the para. Terry Rod Larson came to prominence as a key figure in the 1990s negotiations led to the Oslo Accords, the first ever agreements between Israel and the Palestine Liberation Organization, when he served as the director of the FOFO Institute. Arey bhai, at that stage, this is what he was doing. Now, all this I had sent in a note to Mr. Rahul Gandhi, hoping that he will understand, but periodically, Priyanka ji से, आपके मंत्री महोदय का भी नाम एप्स्टाइन फाइल्स में आया. अरे भाई, और पढ़ तो लो कहां पे फाइल आया है. और दूसरा, एक और मैं ईमेल दिखाता हूं. ये 2014 के मैंने पढ़ी है, आपको इंडिया के बारे में असेसमेंट दी. ये ईमेल है इन दोनों के बीच में, लार्सन और जेफरी एप्स्टाइन के बीच में. ये December 25 का है. December 25 का क्या मतलब है? क्रिसमस डे. ओके, तो एक तरह से सीजन ग्रीटिंग हो रही है. देन ही रिफर्स टू मी, एप्स्टाइन, एंड ही सेज टू-फेस्ड. दिस इज इंग्लिश. टू-फेस्ड का मतलब क्या हुआ है? यू नो द मीनिंग ऑफ टू-फेस्ड? व्हाट डज इट मीन? कि आदमी ठीक नहीं है. उनके वैल्यू सिस्टम में बिल्कुल ठीक नहीं था, बिकॉज दे वर डीलिंग विद समथिंग एल्स एंड आई डू दैट. उसके बाद वो जवाब देता है लार्सन उसको, हैव यू हर्ड द सेइंग, व्हेन यू मीट एन इंडियन एंड अ स्नेक, किल द इंडियन फर्स्ट. अरे राहुल बाबा, इसको पढ़ लेते.
आपने जब बात की, प्रियंका जी ने बात की, बाकियों ने बात की, मेरा नाम एप्स्टाइन, वो हजारों मेम्स बन गई हैं। वो कह रहे हैं कि वो बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स है वो उस लपेट में आ गए और मेरा देश, मेरा भारत महान है और मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। सो आई वांट टू थैंक देम कि उन्होंने मेरा नाम लिया। कई इस दुनिया में लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते, बट थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ बफूनरी आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू यू ऑल्सो। दीज आर द हार्ड फैक्ट। I'm not saying Epstein. Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के Why, sir? कोई सदस्य नहीं जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे संभाल देंगे? वो किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर ये रूल्स नहीं बने हैं, ये रूल्स पहले से है। ये रूल्स जब इस देश में संविधान रचाया गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, फ्रॉम दोज डेज रूल्स आर देयर। वो रूल्स के आधार पर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो यस टू ऑथेंटिकेट। ये ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो जो सदन के सदस्य है उनको नोटिस देना पड़ता है। अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो ऐसे एलिगेशन, वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। फिर भी बोलने के बाद ऑथेंटिक करो बोले तो मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, संबंधित जो विषय है वो विषय का रिकॉर्ड्स है, एविडेंसेस है, वो सब रखना पड़ता है। कुछ नहीं है, एक पेपर लाए है मैं ऑथेंटिक करता हूं, मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ये ऑथेंटिक के बोलने से ऑथेंटिक नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड, इनको ऑथेंटिकेशन का अर्थ भी समझ नहीं है, रूल का भी अर्थ का समझ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, मैं इसके अलावा जो ये एलिगेशन लगाते हैं, इन लोगों ने देश को कैसे कैसे भेजा। चाइना को 38,000 स्क्वायर मीटर कौन दिया, ये सब इन लोगों को पता चलना चाहिए। प्रीवियस इतिहास, पहले का इतिहास इनको कुछ पता नहीं है। वाइल्ड एलिगेशन लगाता है, जब भी ऑथेंटिकेशन बोले तो ऑथेंटिकेशन करता हूँ। और बजट से बात नहीं किया। और चेयर पर जो बैठे हैं, चेयर इज ए चेयर। अगर जब पैनल पे जो रहता है, कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का और किसी का पार्टी हो, चेयर इज ए चेयर। व्हेन चेयर पे कोई व्यक्ति बैठता है वो किसी का पार्टी का नहीं रहता। ये मेरा आप मेरे पार्टी का पुराना सदस्य है, ये बोल के चेयर को अपमानित करना, ये बहुत बड़ी इनका, ही इज belittling the position of the leader of the opposition and he doesn't know the proper parliamentary language, कुछ भी बोलता है। और मुझे लगता है वो पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए बजट के अलावा सब कुछ बोला है। एंड डाटा के बारे में आप सब जानते हैं, आज भारत में डाटा हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो और ओवरऑल एनर्जी, हमारा जो एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी हो, आज के एनर्जी हो, जो भी सिक्योर करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो भी हुआ है वो दुनिया सराहना कर रही। इसीलिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है। बिना समझते हुए वाइल्ड एलिगेशन करना एक जिम्मेदार अपोजिशन लीडर का ये पोजीशन का सम्मान भी नहीं करते, देश का सम्मान भी नहीं करते, रूल का सम्मान भी नहीं करते।